آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 39 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہ ہنس دیے اور میری پیٹھ تھپتھپا کر بولے، حوصلہ کرو، اب واپس سیدھے حویلی چلے جانا، تمہارے ملک صاحب بڑی امام سے ہو کر آ گئے ہیں۔ جی بابا۔ میں یہ خبر سن کر ان کا منہ دیکھنے لگا۔ ہمیں ابھی ابھی اطلاع ملی ہے، اس لیے تم حویلی جاؤ اور اپنے ملک صاحب کے ساتھ مل کر شیطان کے خلاف جہاد کرو۔ شیطان؟ کون شیطان؟ میں نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ مکھن سائیں، پورے کا پورا شیطان ہے۔ اس خبیث نے صاحب مزار پر آ کر ڈیرا جمانے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک ہی چوٹ کھا کر بھاگ گیا۔ ریاض شاہ پورے کا پورا شیطان تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے زیر اثر آ جاتا ہے۔ وہ ہاتھ سے گرا ہوا برا شخص نہیں ہے، چونکہ ابھی اس کے پاس تازہ طاقت آئی ہے۔ اسے برسوں کشٹ نہیں جھیلنے پڑے، بلکہ تھالی میں رکھ کر اسے یہ طاقت عطا کر دی گئی تھی، اس لیے وہ گھمنڈی ہو گیا ہے۔ یاد رکھنا، یہ گھمنڈ شیطان کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ انسانوں کو ان کے اعلیٰ مقام سے نیچے اتارتا ہے۔ اچھا اب جاؤ، ہمارا بلاوا آ رہا ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ ہاں، ایک اور بات یاد رکھنا، ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو ایک دیا جلانے یہاں آنا اور نوافل بھی ادا کرتے رہنا۔ ٹھیک ہے بابا۔ میں چلنے لگا تو ایک دم ایک خیال ذہن میں آ گیا۔ بابا، کیا میں اس بیری کا بیر کھا سکتا ہوں؟ یہ سن کر وہ ہنس دیے۔ تمہیں بیر کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بابا؟ بیٹے، تم اپنا اعتقاد کبھی کمزور نہیں ہونے دیتے، اس لیے تمہیں بیر کھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ شارٹ کٹ کی تلاش میں آتے ہیں، جیسی نیت ہوتی ہے ویسا پھل مل جاتا ہے انہیں۔ یہ کہہ کر بابا تیلے شاہ مزار کے اندر چلے گئے۔ میں انہیں حسرت و یاسیت سے دیکھتا رہا۔ میں مزار سے نکل کر باہر سڑک پر آ گیا۔ مزار کی نسبت سڑک پر کم روشنی تھی۔ ایک کوچوان اپنے گھوڑے کو گھاس کھلا رہا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کر کے پاس بلایا تو اس نے گھاس کی بوری گھوڑے کے منہ سے ہٹا کر ٹانگے میں رکھی اور میرے پاس آ کر بولا، بابو کہاں جانا ہے؟ لاری اڈے جانا ہے۔ سالم چلو گے؟ ظاہر ہے اب سواری تو ہے نہیں کوئی، سالم ہی چلو۔ میں نے اس سے پیسے پوچھے تو بولا، بابو جی 30 روپے لوں گا۔ 30 روپے؟ کیا بات کرتے ہو؟ اڈا دور ہی کتنا ہے، 2 روپے سواری بنتی ہے، 3 پیچھے اور 3 آگے، کل ملا کر 6 سواریوں کے 12 روپے بنتے ہیں۔ میں نے سخت انداز میں حساب کتاب کر کے بتایا۔ بابو، رات کا وقت ہے، واپس بھی خالی آنا پڑے گا، اور اوپر سے گھوڑا بھی تھک چکا ہے، جانا ہے تو 25 روپے ہوں گے۔ بابو جی مہنگائی بہت ہو چکی ہے، 10 کلو گھاس سبزہ خریدنے کے لیے 20 روپے دینے پڑتے ہیں، دال دانا الگ سے خریدنا پڑتا ہے، یہ گھوڑا 50 روپے کھا جاتا ہے، مجھے کیا بچتا ہے؟ صرف 40 روپے۔ سارا دن سڑکوں پر گھوڑوں کی لد، گاڑیوں کا دھواں پھانک کر صرف 40-50، مجھ سے اچھا تو یہ گھوڑا ہے۔ 50 روپے صرف ایک ہی کام کے لیتا ہے، ٹانکے میں جوتا اور پھر ٹک ٹک، نہ بال نہ بچہ، نہ بیوی کی ٹرٹر، نہ بجلی پانی کا بل۔ اچھا یار 25 طے۔ اس کی بات سن کر میں بے اختیار ہنس دیا، حالانکہ اس صدم ظریف کی حالت پر مجھے ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ حالات کا ستایا ہوا سماجی بدگمانیوں کا شکار یہ شخص ہمارے پورے معاشرے کی عکاسی کر رہا تھا۔ مجھے تو رونا چاہیے تھا، لیکن میں اس کی غربت پر کیوں روتا؟ صرف ہنس دیا۔ بے حسی پر کبھی کبھار ہنس دینا بھی ہزاروں آنسوؤں سے افضل ہوتا ہے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ میں اس وقت ملکوال نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن بابا تیلے شاہ نے مجھے اشارہ دے دیا تھا کہ حویلی میں میرا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایک ولی کامل کی رہنمائی کو اشاروں کی زبان سے سمجھ لینا دانائی کی بات ہوتی ہے۔ میں دانا تو تھا نہیں، مگر میں نے جب غور کیا تو دل نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے اس وقت ہی ملکوال چلے جانا چاہیے۔ نہر کی پٹری پر لٹ جانے کا خدشہ بہرحال رہتا تھا، گھپ اندھیرے میں راستوں کی پہچان، بھوت پربت کا خوف ایک فطری سی بات تھی، مگر اب مجھے بھوت پریتوں سے خوف کی بجائے زیادہ خطرہ انسانی روپ میں راستوں کی سیاہی میں لوٹ مچاتے ہوئے ان درندوں سے تھا جو خنجر اور گولی سے بات کرتے تھے۔ اگر مجھے درندوں میں سے کسی ایک کا بھی سامنا ہو جاتا تو میں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس 12 بور کی بندوق تھی، جس کا باقاعدہ لائسنس بھی میرے پاس تھا۔ بندوق لینے کے لیے مجھے گھر جانا پڑتا اور میں گھر جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ والدین مجھے اس وقت ملکوال جانے نہ دیتے، لہٰذا اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں خالی ہاتھ ہی ملکوال چلا جاؤں۔ لاری اڈے سے پشاور اور راول پنڈی کو جانے والی بسیں رات گئے تک چلتی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی بس تھوڑے فاصلے کی سواری نہیں بٹھاتی تھی۔ گجرات وزیر آباد کی طرف جانے والی بسیں بھی جا چکی تھیں۔ لاری اڈے سے نہر کا فاصلہ کم و بیش 10-15 کلومیٹر پر محیط تھا۔ اگر میں پیدل پہ چل پڑتا تو صبح ہونے سے پہلے نہر تک نہیں پہنچ سکتا تھا، ویسے بھی اتنا فاصلہ پیدل نہیں طے کیا جا سکتا تھا۔ اس سمے مجھے بابا تیلے شاہ کا خیال آیا۔ وہ ہزاروں لاکھوں میل
पैदल चलकर रियासतों की उस मंजिल तक जा पहुंचे थे जहां से बंदा अपने खालिक की कुर्बत को गहरे सुकून से महसूस करता है। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं पैदल चलकर नहर के किनारों को छू लेता। वैसे भी ये मीलों का सफर पैदल तय करने का मामला एक दिन पर थोड़ा माकूफ था। ये तो मुसलसल चलते रहने का काम है, और उस वक्त तक मैंने ये तय नहीं किया था कि मुझे पैदल सड़कों के किनारों, बेआबानों, कब्रिस्तानों, सहराओं, नालों, कोई सारों को तय करना है। सलूक की ये सभी मुसाफतें एक आध दिन में थोड़ी तय होती हैं। इसके लिए भी मन में पुख्तगी जरूरी होती है, और ऐसी पुख्तगी से फिलहाल मैं महरूम था। रूहानियत की लज़्ज़त से आशनाई तो हो रही थी, लेकिन मैं दुनिया से किनारा भी नहीं करना चाहता था, समुंदर में गर्क नहीं होना चाहता था। मैं तो साहिलों के किनारे चलते चलते समुद्रों की हवाओं और इनकी जवार भाटा को देखना चाहता था। बस यही मेरी सोच और यही मेरा अमल था। इन दिनों गंदम की कटवाई हो रही थी। मुझे याद आया कि रात के इस पहर ट्रैक्टर ट्राली वाले अमूमन शहर से वापस जाते हैं। मलकवाल और दूसरे देहातों से भी ट्रैक्टर ट्रालियां गंदम की बोरियां लाद कर आती हैं। मैं इस उम्मीद पर लारी अड्डे से निकलकर बाएं सड़क पर आ गया कि किसी ट्रैक्टर वाले से लिफ्ट लेकर नहर तक चला जाऊंगा। मेरे बाएं तरफ कोटली बहराम और गुलिस्तान सिनेमा और दाएं जानिब सदर कैंट। मैं सदर से आने वाले रास्ते पर नजरें लगाए खड़ा रहा। आधा घंटा गुजर गया, लेकिन एक भी ट्राली न आई। उस दौरान मैंने लॉन्ग रूट की गाड़ियों में लिफ्ट लेने की बेसूद कोशिश की। उस इंतजार के बाद मैंने सोचा कि मेरा यहाँ ठहरना फजूल है। मैं 1.5 किलोमीटर का फासला तय करके कोटली बहराम के स्टॉप पर पहुंच गया। उधर से एक सड़क सब्जी मंडी की तरफ जाती थी। अमूमन गंदम मंडी से आने वाले ट्रैक्टर ट्रालियां भी यही रास्ता इख्तियार करती थीं। मेरे अकब में गुलिस्तान सिनेमा था। उस वक्त 1 बजे का शो टूटा था। शायकीन बाहर आ रहे थे। उस वक्त मुझे उम्मीद हुई कि मुमकिन है इस वक्त कोई लोकल बस आ जाए, क्योंकि सियालकोट के नवाही इलाकों के अलावा समरियाल तक से यहाँ फिल्में देखने आने वाले आते थे। लेकिन मेरी ये उम्मीदें भी दम तोड़ दी। उस वक्त ना कोई तमाशाई बस स्टॉप पर ठहरा था और ना ही कोई बस और वैगन आई थी। गालिबन कोई फलाप किस्म की फिल्म चल रही थी, जिसकी वजह से शो में रश नहीं था। दूसरे इलाकों का एक भी शख्स फिल्म देखने नहीं आया था। मैं यूं ही 1 घंटा वहाँ खड़ा रहा। मेरी टांगे पत्थर हो गई थी। उस वक्त मुझे थकन का शदीद एहसास हुआ। सुबह से रात गए तक मैं मुसलसल हरकत में था, और अब थकान से टूट कर गिर जाना मेरे लिए अजीब ना था। मैं एक बंद खोखे के पास रखे लकड़ी के एक टूटे बेंच पर बैठ गया। बेंच के पाए को खोखे वाले ने जंजीर से बांधा हुआ था। उसे खदशा होगा कि कोई चोर ये बेंच उठाकर ले ना जाए। शायद बेंच की कीलें उभरी हुई थीं। जो ही मैंने पहलू बदला, एक बेरहम कील मेरी रान में चुभ गया। तड़प कर मैं उठा और रान दबाने लगा। शदीद दर्द का एहसास होने लगा। हाथ लगाने पर एहसास हुआ कि रान से खून निकलने लगा है। मैंने चलने की कोशिश की तो दिक्कत महसूस होने लगी। या इलाही मेरी मदद फरमा। मेरे दिल से फगां निकली और एहसास की सुई ने मेरी आंखों में छेद कर दिए। न जाने क्यों मैं उस वक्त खुद को तन्हा और बेबस महसूस करने लगा था। अल्लाह मियां जी, आज ही ये सब कुछ होना था। मैं शिकवे के अंदाज में सोचने लगा। सोचों पर पहरे नहीं बिठाए जा सकते। वहमो ख्याल के ये सोते ज़हन से फूटते रहते हैं। सोचों को रोकना किसी भी आम इंसान के इख्तियार में नहीं होता। ढाली वाली सरकार ने एक बार फरमाया था कि सिर्फ वही लोग अपनी सोचों को रोक सकते हैं जो जाहिर बातन में अल्लाह के कुर्ब के मुतमईन होते हैं। उनकी फिक्र का महवर सिर्फ एक जात होती है, इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इश्क़ इलाही पर कल्बो नजर की कुव्वत मरकूज करके एक नुक्ते में सिमट जाते हैं। और वो नुक्ता बज़ाहिर बहुत खफीफ नजर आता है, लेकिन उसके अंदर दाखिल होने वाले को एहसास होता है कि सारी कायनातें और इसरार उस नुक्ते के अंदर बस रहे हैं। जो लोग इस इर्तिकाज़ फिक्र को हासिल कर लेते हैं, वो दुनियावी वहमो ख्याल के जाल को तोड़कर निकल जाते हैं। इन्हें किसी किस्म के गज़न का एहसास नहीं होता। इनके पैरों में छाले और उन छालों से रिश्ता हुआ लहू इन्हें कतई तौर पर दर्द का एहसास नहीं दिलाता। उनकी तमाम हिस्सियात सिर्फ एक मरकज पर ठहरी होती हैं। उस लम्हे में जब मुझे टाली वाली सरकार की बात याद आई, तो मुझे अपनी किताबों में पढ़ा हुआ एक सबक भी याद आ गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा को एक बार तीर लगा तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ठहरो, मुझे नमाज में खड़े हो लेने दो, फिर तीर निकाल लेना। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पर खड़े हुए तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा के शाने से तीर निकाल लिया गया। तीर गहरा पेवस्त हुआ था, लेकिन बाबुल इल्म हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरा मुबारक पर एक लम्हा के लाखवें हिस्से में भी तीर के खींचे जाने का एहसास ना हुआ। मैं समझ गया और जान गया, ये वो एहसास है, यही वो इर्तिकाज़ है जो अल्लाह के एक बरगज़ीदा इंसान को हासिल होता है। उसका इन्हमाक अपने रब की तरफ इतना गहरा और मजबूत होता है कि इसे इर्द गिर्द का कोई होश ही नहीं रहता। यही एहसास औलिया में मुंतकिल हुआ। चिल्ले, शबो रोज की रियाजतें, इबादतें दरअसल इस इर्तिकाज़ की तरफ मंजिल पाने के लिए किए जाते हैं। जब कोई इंसान अपने ज़हन को यकसुई पर माइल कर लेता है तो उस पर अंदर बाहर की दुनिया के भेद आश्कार होने लग जाते हैं। ये ज़हन भी क्या बला है, कैसा सुपर कंप्यूटर है। ये इर्तिकाज़ और यकसुई
उस सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को समझने में मदद देती है। जो समझ गया उसने पा लिया। यह वज़ाइफ भी तो यही चीजें हैं। आप पढ़ते रहेंगे मगर शायद ही कोई रिजल्ट निकले। लाखों लोग कहते हैं वज़ाइफ पढ़ते हैं मगर असर नहीं होता, लेकिन वो ये नहीं समझते। इधर माल पर नजरें और उंगलियां तस्बीह पर, लबों पर वज़ाइफ मगर दिल और गुमान सड़कों के किनारे चलते लोगों की तरफ माइल। हिसाब किताबें मुस्तगरक नहीं, मंजिल और गोहर मुराद यूं हासिल नहीं होता। इसके लिए इन्हमाक चाहिए, और ये इन्हमाक रात के सन्नाटे में खलबत नमाज पर बैठकर, जय नमाज बिछाकर, पांचों पहर की नमाजों में हासिल होता है। ज़हन को काबू कीजिए, यकसुई से वज़ाइफ पढ़िए, आपका रूहानी कंप्यूटर चल पड़ेगा और मुश्किलात धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। कील चुभा, रान में दर्द उठा और मेरे ज़हन में फिक्र और सलूक के नए मायने वारिद होने शुरू हो गए। इस एहसास को पाने के बाद मैंने अपने दर्द से समझौता कर लिया। इसे भूलना तो दो बार था, लेकिन दिल को समझा लिया। शायद मियाँ ये दर्द एक आजमाइश है बल्कि नेमत है। कील तुम्हारी रान में चुभा और दर्द ने तुम्हारे ज़हन के मकफिल दरीचे खोल दिए। अपने रब का शुक्र अदा करो, वो शाफी और मुतलिक है। इल्म यूं भी अता करता है, उसका शुक्र अदा करो। हकीकत यह है कि मैं इस कदर साबिर और शाकिर कभी ना था, लेकिन अल्लाह पाक का ना शुक्र कहलवाना मुझे कभी भी पसंद नहीं आता था। मेरा हाथ रान से बहते खून पर था और ज़हन इल्म अगाही के इस नए मायने पर उस अलीम और कबीर ज़ात का शुक्र अदा करने लगा था। मुझे याद आया कि यहाँ से कुछ दूर ही एक मस्जिद है। मैं लंगड़ाता हुआ मस्जिद में चला गया, लेकिन बाहर दरवाजे पर ताला देखकर मैं रुक गया। अल्लाह मियाँ जी, आपके घर पर ताले पड़े हैं, आपने देख लिया मेरी नीयत क्या थी। मैं सारी रात हमदो सुना करता, सजदे में गिरा पड़ा रहता। अल्लाह मियाँ जी, आपके घर पर तो ताले हैं। मैं खुद कलामी के अंदाज में मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ गया। संगे मरमर की बड़ी बड़ी टाइलों से बनी ये सीढ़ियाँ बड़ा ही ठंडा एहसास दिला रही थी। बैठते ही रान में उठने वाला दर्द आहिस्ता आहिस्ता दब गया। ठंडी टाइलों ने दर्द की आग को सर्द कर दिया था, लेकिन अकड़ाव बहरहाल महसूस हो रहा था। दरवाजे के ऐन ऊपर एक सब्ज रंग का जीरो का बल्ब रोशन था। उधर आसमान पर गहरा सन्नाटा और अंधेरा, और इधर सब्ज रोशनी मेरे कल्बो नजर में मिल जुगे उजाले पैदा कर रही थी। मैंने दीवार से टेक लगाई और आंखें बंद करके अपने अल्लाह का जिक्र करने लगा। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता रहा। वज़ाइफ जो याद थे तकरार से पढ़ता रहा। फिर अपना इस्मे आज़म पढ़ने लगा। चंद लफ्जों पर मुश्तमिल ये कलमात बहुत ही ज़ोर असर होते हैं। ये इस्मे आज़म जो इस्माए इलाही से बनाए जाते हैं, अगर फुट बैठ जाएं तो समझ लें आपके रूहानी कंप्यूटर को वो पासवर्ड मिल गया जो कंप्यूटर के राब्ते अर्श पर रखी लूहे महफूज से जोड़ देता है। इस्तगराक और अनहमाक के साथ पढ़ने से रब्बे जुल जलाल बंदे को अपनी अता और रहमत से नवाजता है, उसकी मुर्दा तकरीर में जान डाल देता है, गोया तकदीर बदल देता है। ये सिर्फ मेरे अल्लाह के इख्तियार में है और अल्लाह से राब्ते के लिए उसका जिक्र ही काफी है। मैं जिक्र इलाही के खुमार में इस कदर खो गया था कि मालूम ही ना हो सका कि जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। मैं सातों के गुजरने से बेखबर था। धीरे धीरे बेचाप गुजरते लम्हों ने मुझे कुर्बे इलाही के एहसास से मालामाल कर दिया था। मेरे कल्बो नजर पर छाई कदूरतों की मैली चादर हट गई थी। मैंने उस वक्त आंखें खोली जब मस्जिद के मौज़िन ने हिला जुला कर मुझे बेदार किया, लेकिन वो खुमार फिर भी आंखों से छलक रहा था। मौज़िन ने इसे कोई और ही मायने दिया। दुरुस्त लहजे में बोला, अबे नशा करके अल्लाह के घर पर डेरा डाले क्यों पड़ा है? कोई और जगह नहीं मिली तुझे? मैं मौज़िन को बस एक टिक देखता रहा। उसे गुस्सा आ गया। घूरता क्या है बे, चल उठ भाग यहाँ से। मौलवी साहब गुस्सा क्यों करते हो? मैं तुम्हारे घर पर चौकी लगाकर नहीं बैठा, ये मेरे अल्लाह का घर है। उसने बुरा नहीं मनाया तो तू क्यों गुस्सा करता है? मौज़िन मेरा टूटा हुआ और खुमार आलूद लहजा देखकर तप गया। अपनी नापाक जुबान से अल्लाह का नाम लेता है, शर्म नहीं आती? शक्ल से तू पढ़ा लिखा लगता है, लेकिन करतूत नशइयों जैसे। मौलवी साहब मेरी जुबान पाक है, तुम अपनी जुबान को चेक कराओ, मेरे साथ मगजमारी ना करो और ताला खोलो। मौज़िन ने मेरे लहजे की काट को महसूस किया कि ये कोई बिगड़ा हुआ नौजवान है। उसके दिल में न जाने क्या आया कि फिर नहीं बोला और मुझे घूरने पर इक्तफा करके दरवाजा खोलकर मस्जिद में चला गया। मैं भी उठा, लड़खड़ाता हुआ मस्जिद में दाखिल हो गया। तू अंदर आ गया, नजासत फैलाना चाहता है, चल बाहर निकल। मौज़िन ने मुझे देखा तो जोर से मेरे बाजू को पकड़कर धकेलने लगा। अकड़ाव की वजह से मुझसे सीधे होकर चलना मुश्किल था। मौज़िन ने मेरी लड़खड़ाती चाल देखकर समझा कि मैं नशे की हालत में हूँ। वो मेरी बात की कैफियत नहीं समझ सकता था। मौलवी साहब मैं नशे में नहीं हूँ, आप अंदर जाएं और अजान दें, मैं नमाज पढ़कर चला जाऊंगा। मस्जिद के आदाब मलहूज रखते हुए मैंने नरम अंदाज में कहा। नशे में नहीं है? मौज़िन ने घूर कर देखा। अबे तेरी आंखें चढ़ी हुई हैं और ये बहक बहक कर चलना। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के घर में आकर झूठ बोलते हो, ला हौला वला कुव्वता।
मौजिन ने मेरा बाजू ना छोड़ा और मुझे बाहर धकेलने से बाज ना आया। इस असना में अंदर से किसी की गंभीर आवाज आई, कादिर बख्श किससे झगड़ा है? इलामा साहब एक नशेई मस्जिद में घुस आया है। क्या कहता है? कहता है नमाज पढ़ने आया हूँ, लेकिन मुझे तो ये चोट लगता है, टूटियां खोलकर और जूतियां उठाकर भाग जाएगा, इसीलिए बाहर निकाल रहा हूँ, मगर ये निकलता ही नहीं। कादिर बख्श इसे अंदर आने दो, नमाज से ना रोको, उसकी नीयत क्या है ये अल्लाह ही जानता है। तू आकर अजान दे, वक्त हो रहा है। मौजिन कादिर बख्श ने मुझे बेबसी से घूरकर देखा, मगर जाते जाते दांत चबाकर बोला, अगर तूने कोई गड़बड़ की तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। वो खुले ढील डोल वाला शख्स था, हाथ सख्त और वजनी थे, वो वाकई मेरी चमड़ी उधेड़ सकता था। मैं उससे उलझ नहीं सकता था। बेवजह एक वहम मेरी ज़ाहिरी हालत से दगा खा रहा था। वैसे उसकी बात सही थी, मगर सिर्फ इतनी, मैं तो अपने आप के जिक्र का खुमार लिए बैठा था। मैंने उसकी बात का फिर बुरा नहीं मनाया। वो नशेई समझता था मुझे, और मैंने कबूल कर लिया कि हाँ मैं वाकई नशे में हूँ, मगर ये नशा उसकी समझ से बालातर था। मैं वुजू कर चुका तो उस दौरान फजर की अजान हो चुकी थी। मस्जिद बहुत बड़ी नहीं थी, एक किनार रकबे पर फैली हुई थी। उसका एक बड़ा सा हॉल था, जिस तरफ गुस्ल खाने थे। उसे चंद कदम के फासले पर एक हुजरे के आसार दिखाई देते थे। गंभीर आवाज उधर से ही सुनाई दी थी। मैं वुजू करके मस्जिद के हाल में पहुंचा तो वहाँ मौजिन के अलावा एक उम्र रसीदा बुजुर्ग नजर आए। लंबी सफेद दाढ़ी, सर पर सफेद अमामा, सफेद मलमल का कुर्ता और नीचे तह बंद। वो नवाफिल अदा कर रहे थे। मैंने फजर की सुनते अदा की और एक तरफ बैठकर जिक्र करने लगा। नमाज का वक्त होने पर 10-12 नमाजी हजरात आ गए। उस बुजुर्ग ने अमामत कराई, निहायत खुशू खुशू रकत अमेज अंदाज में तिलावत की। नमाज के बाद उनकी दुआ करने के अंदाज ने मुझे महसूस कर दिया। नमाज के बाद लोग चले गए, मगर मैं उन्हें देखता रहा। मैंने महसूस किया कि उन्होंने एक आध बार मुझे तायराना नजरों से देखा था। मौजन भी देख चुका था कि मैंने नमाज पढ़ी है। उसके चेहरे का तनाव और नफरत भी खत्म हो चुकी थी। नमाज के बाद वो बुजुर्ग कुरान पाक पढ़ने के लिए बैठ गए। मैं उनके करीब हो गया। मुझे देखकर धीरे से बोले, कादिर बख्श का तजुर्बा अपना है। 1-2 बार नशेई मस्जिद से टूटियां और स्टील के लोटे चोरी करके ले गए थे, इसलिए ये ताला लगा कर जाता है। माफ करना बेटे, कादिर बख्श ने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। वो बुजुर्ग बोले, इलामा साहब इसने उनका क्या कसूर? मेरी हालत देखकर उन्हें यही गुमान होना था। मैंने कहा, कहाँ से आए हो? उन्होंने पूछा। मैंने मुख्तसर अल्फाज में बता दिया कि सवारी ना मिलने की वजह से ये रात यूं ही गुजर गई है। वो गहरे अंदाज में सांस लेकर मेरी तरफ देखने लगे। अल्लाह तुम्हें इस मुशक्कत और तकलीफ पर सब्र और अजर फरमाए। ये कहकर वो कुरान पाक की सूरह जिन पढ़ने लगे। मैं कामिल तवज्जो से तिलावत सुनने लगा। उस वक्त मौज़िन और सिर्फ मैं ही मस्जिद में मौजूद थे, लेकिन न जाने मुझे क्यों एहसास होने लगा कि तिलावत सुनने के लिए फरिश्ते और जिन्नात भी जोक दर जोक यहाँ खींचे चले आए हैं, और मस्जिद का हाल और सीन इनके खफीफ और लतीफ वजूद से भर चुका है। 1 घंटे तक मैं तिलावत कलाम पाक से महसूस होता रहा। उजाला अब फैल चुका था। मैं उनसे इजाजत लेकर उठने लगा कि ऐन उस वक्त एक औरत 7-8 साल के बच्चे को सीने से लगाई भागती हुई उनके पास आई। इलामा साहब मेरे लाल को बचा लें, इसे फिर दौरा पड़ गया है। बच्चे के हाथ पीर तशंज की अंदाज में अंदर को मुड़े हुए थे। चेहरा एक तरफ को खिंचा हुआ था और सांस अटक अटक कर आ रही थी। होंठों के किनारों से लालें बह रही थीं। इलामा साहब ने बच्चे को चटाई पर लिटाने के लिए कहा और आयात कुरान पाक पढ़कर बच्चे पर फूंकने लगे। इलामा साहब की शख्सियत से मैं पहले ही मरूब हो चुका था। उनकी आंखों में देखना बहुत मुश्किल काम था। गहरी स्याह और जगरोतों से थकी हुई आंखें थी इनकी, लेकिन चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था जो सिर्फ अल्लाह के शाकिर बंदों को नसीब होता है। पहले वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ते रहे थे, फिर उन्होंने सूरह जिन में से मखसूस आयात पढ़कर बच्चे पर फूंक मारी थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार बच्चे को कोई अफाका ना हुआ। इलामा साहब यही आयात बाबर पढ़ते रहे। कुछ ही देर बाद बच्चे के तशन शुदा हाथ पांव फड़कने लगे। उसकी हालत ऐसी थी जैसे पानी से निकाली हुई मछली फड़क फड़क कर आखिरी दम लेते हुए वक्फे वक्फे से फड़कती है। ये देखकर इलामा साहब के माथे पर शिकने पैदा हुई। मैं कई रोज से अल्लाह के बंदों और अमलियात करने वालों को निहायत करीब से देख रहा था। एक वली, आमिल, मलंग, मजजूब और इमाम मस्जिद के दरमियान रूहानी इस्तिकामत का बुनियादी फर्क जो महसूस किया है वो इलामा साहब के हाथ देखने को मिला। उन्होंने किसी तावीज़ धागे की जरूरत महसूस नहीं की थी। लगता था बच्चा माँ के हाथों में तरह तरह का जान दे डालेगा। इस पर काबिज शह ने उसकी रगों में अपने पंजे बुरी तरह गाड़ रखे थे। इलामा साहब की जबें
तफक्कुर से सिर्फ एक बार आलूद हुई थीं। उन्होंने बच्चे की हालत और वज़ाइफ को बेअसर देखा तो बच्चे की टेढ़ी मेढ़ी शहादत की उंगली को अपने अंगूठे और शहादत की उंगली में दबाकर दोबारा से आयात कुरानी पढ़ने लगे। बच्चे को झटके लगने बंद होके और आंखें झपकने लगा। खुदा की पनाह, उसकी आंखें किसी भेड़िए की माने नजर आ रही थीं। उसने एक नजर अपनी माँ की तरफ देखा, फिर दूसरी नजर मुझ पर डालने के बाद इलामा साहब की तरफ मतवज्जे हुआ। उसके चेहरे के खदोखाल बदलने लगे और गले से गड़गड़ाहट पैदा होने लगी। यूं लगा जैसे भेड़िया किसी ताकतवर जानवर के सामने बेबस होकर मुता अजीज बिछाने के लिए घरा रहा हो। इलामा साहब के चेहरे पर अब जलाली असर पैदा होने लगे। उन्होंने सूरह जिन की आयत और आयतुल कुर्सी पढ़कर उसकी आंखों पर फूंक मारी तो बच्चे के हलक से भेड़िए की आखिरी गराहट सुनाई दी और आंखों में जैसे शोला सा बुलंद होकर बुझ गया था। बच्चा निढाल होकर माँ की गोद में गिर गया। उसके हाथ पांव और चेहरा मामूल की हालत में आ गया। इलामा साहब ने कादिर बख्श को आवाज दी, मौलाना टूटी से पानी ले आओ। कादिर बख्श जल्दी से उठा और प्लास्टिक की एक बोतल में पानी भरकर ले आया। इलामा साहब ने पानी को दम किया और खातून को देकर बोले, बच्चे को 1 हफ्ते तक बोतल से पानी पिलाना, कम हो जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ताज़ा पानी शामिल कर लेना। खातून इलामा साहब को दुआएं देने लगी। उसने बच्चे को उठाकर सीने से लगाया और वापस चली गई। ना उसने कोई नजराना दिया, ना इलामा साहब ने इसे सदका और हदिया देने के लिए कहा। मेरे लिए ये हैरत की बात थी, वरना अब तक तो मैं यही देखता और सुनता आ रहा था। तावीज़ धागे के नाम पर कारोबार मिंबर पर बैठकर भी हो रहा था। एक सहाफ़ी की हैसियत में मेरे लिए इस कारोबार के घिनौने पहलू अब पोशीदा नहीं रहे थे। जिन्नात, भूत प्रेत, काला जादू, नजर वगैरह जैसे शहरी मामलात के इलाज मुआलजे और रूहानियत के दरपर्दा खानकाहों में कारोबार का चिराग जलाने वाले बहुत से चेहरे मेरे सामने बेनकाब हो रहे थे।